So the first step of the Routh-Hurwitz criteria is to create the Routh table. Right? So we consider the system with the closed loop transfer function given as this. There is some numerator in the system. We are not concerned about the numerator. Why are we not concerned about the numerator? Because the system stability depends upon the system poles and not on the system zeros. Right? So there might be some numerator here, which we do not care what it is. But the denominator is something like this. It could be of any order, as was it of sixth order. So coefficient is a6 s to the power 6 plus a5 s to the power 5 plus a4 s to the power 4, a3 s cube plus a2 s square, a1 s plus a0. Right? That is the denominator here that I have, and I want to ascertain the stability of the system. Right? So first step is to create the Routh table. So for creating the Routh table, you will first write down all the s you have in the system. For example, if you are starting with s to the power 6, so you will start from s to the power 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0. If you had s to the power 7 in the denominator, then you would have started from s to the power 7, 6, 5, for the example. That is the way you would have written it here. Right? And if this starting power of s is even, then you will write all the even coefficients here. Right? So you write coefficient of s to the power 6, then you will write coefficient of s to the power 4, then you will write s to the power 2, then s to the power 0. Right? Up to 0 you will be writing here. That is a0. Similarly, second one has to be odd. So you will write all odd coefficients in descending order. So s to the power 5, s to the power 3, s to the power 1, and since there is nothing here, so you write 0 directly. Right? Then the rest of the table we have to fill. What is the method of filling is that you will have to find determinant. And what determinant you will have to find? The first row will form the first row of the determinant, right? जो इसके ऊपर दो एंट्रीज हैं A6 और A5, वो इसके फर्स्ट कॉलम बन जाएंगे डिटर्मिनेंट के, और दूसरा कॉलम बन जाएगा जो इसके बिल्कुल राइट में है, राइट? सो A4 A3, and you will take a negative of this determinant and divide it by जो इसके सीधा ऊपर जो एंट्री है, that is A5, right? So that will be the entry at this table, at this cell of the table, Routh's table. Following the same method, you will find it here. What will happen? Determinant निकालना है, किसका निकालना है? A6, A5, जो दो एंट्रीज, जो दो कॉलम एंट्रीज हैं, वो फिक्स्ड ही रहेंगी सब के लिए. A6, A5, A6, A5, A6, A5, A6, A5, right? जो पहली दो हैं. और नेक्स्ट दो कौन सी रहेंगी? जो उसके राइट हैंड साइड में है. सिंस वी आर ट्राइंग टू फाइंड द सेल वैल्यू हियर, तो जो राइट हैंड साइड में है A2 A1, तो A2 A1 यहाँ. वैसे इसके राइट हैंड साइड में A4 A3 था, तो A4 A3 आ जाएगा. बट यू विल कीप ऑन डिवाइडिंग इट बाय दिस A5 ओनली. सो A5 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 A5. इसका डिटर्मिनेंट माइनस लेके डिवाइड करना है A5 से, तो वो यहाँ की एंट्री. ये उस तरह की चीज़ है जिस तरह से आप कहते हैं कि ये तो मैथ ही है सर वाली चीज़ है, ये सीखने की चीज़ है. और अगेन मैं फिर से वही बात कह दूं, क्योंकि आपकी क्लास में काफ़ी लोग एग्ज़ाम्स को लेकर बहुत ज़्यादा उत्साहित रहते हैं, तो उनके उत्साहवर्धन के लिए मैं बता दूं कि ये एग्ज़ाम में ज़रूर आता है, राइट? एंड व्हेन आई से एग्ज़ाम में ज़रूर आता है, डज नॉट मीन कि मेरे एग्ज़ाम में भी आएगा. सो आई वांट टू मेक दैट क्लियर दैट ज़रूरी नहीं कि मेरे एग्ज़ाम में आएगा, बट व्हेन आई से एग्ज़ाम में आता है, दैट मीन्स दैट फाइनल एग्ज़ाम में आता है, राइट? और वो मेरे एग्ज़ाम नहीं, वो यूनिवर्सिटी का एग्ज़ाम है. सो similarly for this cell entry A6 A5 A6 A5, a negative of this determinant again, ठीक है? और यहाँ पे दो एंट्रीज कौन सी आएंगी? ये वाली A0 और 0. दिस विल बी 0 बिकॉज यहाँ राइट में कुछ नहीं है, तो 0 0 आ जाएगा. तो अगर दो चीजें 0 है तो डिटरमिनेंट 0 होता है, तो ये वाली एंट्री 0 आ जाएगी. सिमिलरली C1 कैसे निकालेंगे आप देख सकते हैं. तो
पहली दो एंट्रीज होंगी A5 और B1, इसको मैं पूरे को B1 बोल रहा हूँ, A5 B1, सो दिस इज C1 राइट, यहाँ मैंने लिखा C1, A5 B1, और यहाँ की दूसरी एंट्रीज क्या होंगी A3 B2, इसका डिटरमिनेंट माइनस डिवाइडेड बाय जो जस्ट इसके ऊपर है, इसके ऊपर क्या है यहाँ पे B1 है, डिवाइड बाय B1। वैसे C2 क्या होगा, ये पहली दो एंट्रीज तो कॉमन ही रहेंगी, A5 B1 और डिवाइड बाय B1 कॉमन ही रहेगा, सिर्फ ये वाली एंट्री चेंज होगी, वो क्या होगी इसके राइट हैंड वाली, राइट में क्या है A1 B3, तो A1 B3 राइट। इसी तरह से आप सारे इसकी एंट्रीज को भरेंगे, ठीक। सो आई थिंक आई विल टेक एन एग्जांपल छोटा सा, टू हाउ डू यू फाइंड रूट्स टेबल, वो मैंने बुक से एग्जांपल लिया है। This is the closed loop transfer function, which is given as this, ऊपर 1000 lakh कुछ भी हो, we are not concerned about it. This is the denominator, right? So here the power of the denominator is starting from 3, right? The highest term is s cube. So I'll start writing from s cube, s square, s1 और s0, right? क्योंकि क्यूब से स्टार्ट हो रहा है, तो मैं यहाँ भी ऑड पावर से शुरू करूँगा, उसको 1, फिर s31, फिर उसके बाद कुछ नहीं है तो 0, फिर यहाँ पे मैं s स्क्वायर से शुरू करूँगा तो 10, 1 0 3 0 और 0। अगर हम ये वाला कॉलम नहीं भी लिखते तो भी चलता, चलो। देन हियर क्या है, यहाँ पे क्या आएगा, इसका डिटर्मिनेंट होगा, सो 1 0 3 0 इंटू 1 माइनस 31 इंटू 10 का माइनस, डिटर्मिनेंट का भी माइनस है, सो माइनस ऑफ दिस डिवाइडेड बाई दिस 10, तो वो आ रहा है -72। यहाँ पे 0 ही आएगा, क्यों 0 आएगा, तो डिटर्मिनेंट इसका 1 0 और 0 0 करेंगे, it will be 0, this is also 0, right? So this is how you will now fill up all the cells of this Routh-Hurwitz table. Now the next step was, how do you interpret this table, right? So the interpretation of table is, जब ये सारे सेल्स आपने तैयार कर लिए, देन यू विल ओनली फोकस ऑन द फर्स्ट कॉलम, ये जो आपने सेल्स बनाए ना तो सारे टेबल, उसमें जो ये पहला कॉलम का मतलब ये नहीं है जो ये आपने लिखा है एस क्यूब वगैरह, ये नहीं, दिस कॉलम, द फर्स्ट कॉलम दैट यू हैव फाउंड, राइट, ओनली ऑन दैट यू हैव टू फोकस। एंड उसमें जो आपने ऊपर से शुरू हो जाना है, तो और जो नंबर्स हैं उनके साइंस देखने हैं, राइट। तो साइन कैसे देखेंगे, ये पॉजिटिव है, ये पॉजिटिव है, फिर ये नेगेटिव हो गया, राइट। सो देयर इज अ साइन चेंज, दिस इज वन साइन चेंज एट द फर्स्ट वन, this was negative, when I move forward then this becomes positive, then there is another sign change, right, then there could be some other sign change, तो ऐसे जितने sign changes हैं उनको हमने काउंट करते जाना है, right, and this Routh-Hurwitz criteria says कि जितने number of sign changes है in the first column of this table, उतने ही number of poles होंगे right half plane पे। तो अगर सिस्टम स्टेबल है तो ये फर्स्ट कॉलम में कोई साइन चेंज नहीं होगा, अगर एक भी साइन चेंज है तो सिस्टम अनस्टेबल होगा, ठीक है। पर आपको ये निकालना आना चाहिए कितने पोल्स राइट हाफ में है, कितने लेफ्ट हाफ में है, तो दिस एक्चुअली शोज द नंबर ऑफ पोल्स ऑन द राइट हाफ प्लेन, द नंबर ऑफ साइन चेंजेस, ठीक है। इसमें कुछ 2-3 स्पेशल केसेस हैं, वी विल बी डूइंग दैट आल्सो। द स्पेशल केसेस इज व्हाट इफ यू encounter 0 in the first column and things like that, right? Thank you.